Alright, so we are going to start from Sufi movement. Now, Islamic mysticism, called as Sufism or Sufi religion, the word Sufi originates from the Arabic word Safa, and Safa means purity. Abul Fazl, जो कि अकबर के समय थे, mentions 14 सिलसिलास in आइनी अकबरी. तो कुल मिला के 14 ऐसे सिलसिला अबुल फजल ने जिक्र किया था आइनी अकबरी में. एंड कुछ जो प्रोमिनेंट सिलसिलाज हैं जैसे चिश्ती है, सुहरावर्दी है, कादरी है, शतारी है और नक्शबंदी है, were the most important among the 14 orders or silsilas or mystic organizations. I repeat, Chishti, Suhrawardi, Qadri, Shatari. Chishti, Suhrawardi, Qadri, Shatari as well as Naqshbandi. They were some of the most prominent amongst the 14 silsilas. A murid literally meant one who seeks, is a novice committed to spiritual enlightenment by suluk. Suluk kaun hote the? By traversing a path, someone who is a true seeker of knowledge and is willing to traverse a path under a spiritual guide who may assume the title of Murshid, Peer or Shaykh. ठीक है, तो one who is a novice yet committed to spiritual enlightenment by a suluk. So suluk basically जो सिखाता है उसको बोल रहे हैं, और जो सीखने वाला होता है disciple, that is called as murid. The monasteries where the Sufis inhabited, they were called as Kankha, Khanqahs, Kankha. The Sufis' religious associations were divided into Bashara and Beshara. So Bashara basically were the proponents of Islamic doctrine, and Beshara were not associated with Islamic doctrines. Then let's start with the Chishti order. According to Sayyid Muhammad Hafiz, Chishti was the first Sufi order that had come to India. So Chishti was the first Sufi order that had come to India, and Abu Ishaq Shami and Abu Ahmad Abdal founded the Chishti order. तो दो लोगों के नाम यहाँ पे हैं, ठीक है. दोनों का नाम स्टार्ट होता है अबू से. एक अबू इशक समी है और एक अबू अहमद अब्दल हैं, and these two Abu were the founders of the Chishti order. Then Khwaja Moinuddin Chishti laid the foundation of Chishti order in India. तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती came to India with the Ghori's army. तो ये घोरी के साथ आए थे, मोहम्मद घोरी, and he was followed by Khwaja Bakhtiyar Kaki, Sultan Qutbuddin Aibak and Sultan Iltutmish. So he was followed by Khwaja Bakhtiyar Kaki. So ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फॉलोअर कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो घोरी के साथ आए थे, जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर की स्थापना की थी इंडिया में, बट देन उनके भी कुछ फॉलोअर्स बन गए थे, लाइक ख्वाजा बख्तियार काकी, यू कैन जस्ट रिमेंबर काकी. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान था वो भी फॉलोअर था मोइनुद्दीन चिश्ती का. इल्तुतमिश वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती. नाउ देन शेख फरीदुद्दीन गंजी शक्कर, यू कैन जस्ट रिमेंबर गंजी शक्कर, वाज अ सूफी सेंट ऑफ चिश्ती सिलसिला who was famously called as Baba Farid. All right, I think गुरु नानक और गुरु गोविंद में से कोई एक था जो बाबा फरीद के भी फॉलोअर थे. Now some of the compositions and ideas of Baba Farid were compiled in the Adi Granth of the religious text of Sikhism. He was the son-in-law of Balban. Now this is the most important point. Baba Farid urf Ganji Shakkar, he was the son-in-law of Balban. Nizamuddin Aulia's acclaimed disciples were Sheikh Shalim Chishti, Amir Khusro and Hasan Dehlvi. तो अब जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती तो इंडिया में ले आए, और फिर उनके फॉलोअर्स बने काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान इल्तुतमिश, अलॉन्ग साइड गंजी शक्कर भी बन गए, जिनको बाबा फरीद भी बोल रहे हैं. ही ऑल्सो बिलोंग टू चिश्ती, जिनके कुछ सेइंग्स आदि ग्रंथ में भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. फिर दिल्ली के इलाके में जो फेमस किए थे चिश्ती सिलसिला को, दैट वाज निज़ामुद्दीन औलिया. और निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल्स कौन थे? तो मीर हसन देहलवी थे एक, और एक अमीर खुसरो थे, और शेख सलीम चिश्ती थे आगरा साइड के पास, ठीक है. तो ये लोग भी चिश्ती से बिलोंग करते थे, स्पेशली निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे. नाउ बाबा फरीद हैड टू प्रोमिनेंट डिसाइपल्स, निज़ामुद्दीन औलिया एंड नसरुद्दीन चिराग दहलवी, द फेमस सेंट्स ऑफ द चिश्ती सेक्ट. नाउ अब निज़ामुद्दीन औलिया का भी गुरु कौन था? बाबा फरीद. एंड बाबा फरीद was the guru of Nizamuddin Auliya as well as Chirag Dehlvi as well as Nizamuddin Auliya. तो निज़ामुद्दीन औलिया एज वेल एज चिराग दहलवी, ये दिल्ली के आसपास वाले में फेमस गुरु, मतलब पॉपुलराइज कर रहे थे चिश्ती ऑर्डर को, चिराग दहलवी एंड निज़ामुद्दीन औलिया. बट इन दोनों के गुरु कौन थे? बाबा फरीद गंजी शक्कर, ठीक है.
Now, some of the famous disciples of Nizamuddin include Sheikh Nazruddin Chirag Dehlvi, Amir Khusro, and Sheikh Salim Chishti. Nizamuddin Auliya was also followed by Sheikh Nasiruddin and Sheikh Salim Chishti and the famous Chishti saints. Okay, Sheikh Salim Chishti used to live in Fatehpur Sikri, and Amir Hassan Dehlvi was called the Sadi of India because of his high quality ghazals. ठीक है, तो ये जो मीर हसन दहलवी की बात हम कर रहे हैं, मीर हसन दहलवी जिनके गुरु बाबा फरीद थे, ये गज़ल काफ़ी अच्छी लिखते थे. ठीक है. एंड बाय द वे बाबा फरीद, दैट इज़ गंजी शक्कर, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ बलबन. नाउ मूविंग टू कादरी ऑर्डर, सॉरी सुहरावर्दी ऑर्डर. सुहरावर्दी ऑर्डर में देखो अबू अल नजीब सुहरावर्दी, अब इनके सरनेम में ही सुहरावर्दी आ रहा है तो इसमें नहीं पूछा जाएगा. दिस सेक्ट वॉज प्रोपिगेटेड इन इंडिया बाय जलालुद्दीन तबरेज़ी, बहाउद्दीन ज़कारिया एंड हामिदुद्दीन नागौरी. तो इतना है बस याद रख लो कि फाउंडर जो था सुहरावर्दी का, उसके नाम में ही सुहरावर्दी आ रहा है. लेकिन जो इंडिया में पॉपुलराइज़ किए थे सुहरावर्दी को, उनके नाम जान लो. एक तबरेज़ी थे, एक ज़कारिया थे. तबरेज़ी, ज़कारिया, नागौरी, ये 3 लोग थे जो कि सुहरावर्दी ऑर्डर को इंडिया में फेमस किए थे. दैट्स ऑल. देन कादरी ऑर्डर में देखा जाए तो ये अब जैसे कादरी ऑर्डर के फाउंडर जो थे, मोइनुद्दीन कादिर जिलानी ऑफ बगदाद, ठीक है, या अब्दुल कादिर ऑफ जिलानी ऑफ बगदाद, ये तो फाउंडर थे. तो इनके नाम में ही कादिर आ रहा है, बस जगह इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू नो वेयर इट वाज फाउंडेड ग्लोबली. सो कादरी ऑर्डर वाज फाउंडेड इन द बगदाद रीजन. और उसको इंडिया में लेके कौन आए थे? तो सैयद मोहम्मद जिलानी एंड शाह नियामतुल्लाह. तो कोई नियामत उल्लाह थे और कोई जिलानी थे. ये दोनों लोग कादरिया ऑर्डर को इंडिया लेके आए थे, नियामतुल्लाह एंड जिलानी. देन द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ द कादरी ऑर्डर वाज शेख मीर मोहम्मद और मियाँ मीर. तो मियाँ मीर या शेख मीर मोहम्मद, लुक एट दिस टर्म मीर. तो मियाँ मीर या शेख मीर मोहम्मद सबसे फेमस कादरी ऑर्डर थे इंडिया में. मेरे ख्याल से जहांगीर के कंटेम्प्रेरी भी थे. दारा शिकोह द सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां वाज अ फॉलोअर ऑफ कादरी ऑर्डर. ठीक है. तो दारा शिकोह वाज बहुत ही मानते थे कादरी ऑर्डर को. फिर से बता दे रहे हैं, कादरी ऑर्डर बगदाद में खोला गया था, सेटअप किया गया था. इंडिया में जो उसको ले आए थे दैट वाज नियामतुल्लाह और कोई जिलानी नामक व्यक्ति थे. और कादरी सेक्ट को फॉलो करने वाले दारा शिकोह थे, राइट. और इसमें सबसे पॉपुलर जो थे इंडिया में कादरी ऑर्डर के, दैट वाज मियाँ मीर. फिर कादरी के ऊपर हमने सुहरावर्दी पढ़ा था. वहाँ पे तबरेज़ी, ज़कारिया और नागौरी, ये 3 लोग इंडिया में फेमस किए थे, प्रोपगेट किए थे सुहरावर्दी. अदरवाइज़ ये अबुल अन नजीब सुहरावर्दी इसको फाउंड किए थे. इसके अलावा चिश्ती में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. इसको इंडिया में लेके आए थे. वेराज ग्लोबली देखा जाए तो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर्स वो थे 2 व्यक्ति जिनके नाम अबू से स्टार्ट होते हैं. और चिश्ती ऑर्डर के बहुत प्रमुख जो गुरु रह चुके हैं, दैट इज़ ख्वाजा बख्तियार काकी. यू कैन रिमेंबर काकी. सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एज वेल एज इल्तुतमिश भी चिश्ती ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे. देन बलबन के सन इन लॉ थे एक गंजी शक्कर, ऑल्सो नोन एज बाबा फरीद. ही ऑल्सो बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर. नाउ दिल्ली वाले इलाके में दिल्ली वाले इलाके में निज़ामुद्दीन औलिया और मीर हसन दहलवी ये पॉपुलराइज़ किए थे. मीर हसन दहलवी को साडी इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छी गज़ल लिखते थे. और निज़ामुद्दीन औलिया एज वेल एज मीर हसन दहलवी, चिराग दहलवी, इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद थे. ऑल राइट. देन शेख सलीम चिश्ती लिव्ड एट फतेहपुर सीकरी. तो ये हो गए सारे. फिर इसके बाद नक्शबंदी देखते हैं. तो ये इनके नाम में भी नक्शबंदी आ रहा है. तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इनका पूरा नाम है, जो कि इसके फाउंडर हैं. और अ प्रोमिनेंट सेंट ऑफ दिस ऑर्डर वाज बाकी बिल्लाह. ठीक है, कोई बिल्लाह था यानी बिलौटा. ठीक है. सो जो कि दिल्ली आ गए थे काबुल वाले इलाके से. तो जैसे मियाँ मीर हम बता रहे हैं, मियाँ मीर ही वॉज अ पॉपुलर सेंट ऑफ विच सिलसिला. सो मियाँ मीर कादरी ऑर्डर के थे. ठीक है, मियाँ मीर कादरी ऑर्डर के थे. एंड कादरी ऑर्डर बगदाद में खोला गया था. इंडिया में कौन लेके आया था? नियामतुल्लाह और जिलानी. और मियाँ मीर वॉज वन ऑफ द फेमस सेंट्स ऑफ कादरी ऑर्डर. फिर हम चले गए एंड बाय द वे दारा शिकोह वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ कादरी ऑर्डर. देन नक्शबंदी में कोई बिल्ला नामक सेंट थे जो कि काबुल से दिल्ली आए थे और यहाँ इंडिया में फेमस करवाए थे. इनफैक्ट उनके बाद एक और थे सिरहिंदी. ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ बिल्ला. ठीक है. एंड बिकेम अ फेमस सेंट ऑफ द नक्शबंदी ऑर्डर. तो जिस तरह से मियाँ मीर वॉज फेमस कादरी सेंट, उसी तरह से सिरहिंदी
was a famous Naqshbandi order. ठीक है. Sirhindi was a contemporary of Mughal Emperor Akbar. मेरे ख्याल से इसको कंफर्म कर लेना चाहिए. Sirhindi was a contemporary of which Mughal Emperor? Sheikh Ahmad. So Sheikh Ahmad Sirhindi. Sheikh Ahmad Sirhindi was a contemporary of which Mughal Emperor? So अकबर एज वेल एज जहांगीर दोनों के थे ये. ठीक है. इसके अलावा एक लास्ट में शतारी ऑर्डर भी पड़ता है एंड इनके नाम में भी शतारी आ रहा है. यही इंडिया में लेके आए थे. एंड शतारी वॉज मोर थोड़ा जोग्राफिकली लोकलाइज्ड था ये इन द रीजन्स ऑफ बंगाल, जौनपुर एंड मालवा. ठीक है. तो हाँ ठीक है. एंड शाह मोहम्मद गौस या शेख घौस बस याद रखो, घौस. सो घौस बिलोंग टू द शतारी ऑर्डर एंड बिलीव्ड लॉर्ड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ औलिया. तो ये औलिया इनफैक्ट निज़ामुद्दीन औलिया को कृष्ण के समकक्ष मतलब सिमिलर मानते थे. ये घौस नामक सेंट थे ये शतारी ऑर्डर के. एंड दिस वाज लोकलाइज्ड टू बंगाल एंड जौनपुर एंड मालवा रीजन. Then pranayam and yoga practices were accepted by almost all the Sufi sect except Naqshbandi. नक्शबंदी को छोड़ के प्राणायाम सभी इनकॉर्पोरेट किए थे. तो एक बार नक्शबंदी फिर से बता दे रहे हैं. देखो नक्शबंदी में अहमद सिरहिंदी हैं जो कि खैर वो बाद में आए थे. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला जो काबुल से डली आए और बाद में फिर सिरहिंदी आ गए थे. और अकबर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ सिरहिंदी. तो ये हो गए. अब इसमें एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं. देखो टेबुलर फॉर्म में. अब चिश्ती तो अबू के द्वारा खोला गया था. सुहरावर्दी तो ये ठीक है. शतारी भी ठीक है. फिरदौसी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं लिखा था. तो फिरदौसी वस बदरुद्दीन फाउंडर थे फिरदौसी के. ठीक है. अब कुछ उपाधियाँ दी गई थी इन लोगों को, जैसे कि काकी को बेसिकली अकतब भी बोलते थे, कुतुबुल अकतब. और ये नगोरी दैट वाज आई थिंक सोहरावर्दी से ये बिलोंग करते थे. इनको तारीखें भी बोलते थे नगोरी को. और निज़ामुद्दीन औलिया पे ही सवाल बनता है. इनको महबूब इलाही भी बोलते थे या सुल्तानुल औलिया भी बोलते थे. सुल्तानुल औलिया या फिर महबूब इलाही इज़ इक्वल टू निज़ामुद्दीन औलिया. फिर अब ये पता नहीं कौन है. इनका याद रखो. चिराग दहलवी को चिराग डली भी बोलते थे. और शेखुल हिंद किसको बोलते थे? शेख सलीम चिश्ती को बोलते थे. और पीरन ई पीर एंड महबूब सुबहानी. तो जैसे महबूब इलाही हमने देखा था, उसी तरह से महबूब सुबहानी किसको बोलते थे? दैट वाज अब्दुल कादिर जिलानी. इन्हीं को पीरन ई पीर भी बोलते थे. और ये सिरहिंदी को अफसानी भी बोलते थे. ठीक है. मुजादिद अफसानी. तो ये हो गया सूफ़ी. ठीक है. अब ये एक तरह से पूरा ही हो गया है. इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के गवर्नर जनरल्स वगैरह वो सब भी हमने पढ़ लिया था. बाकी दिल्ली सल्तनत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं घटना चक्र से, तो वो वहाँ से रिवाइज़ कर लेना. ऑलरेडी वीडियो पढ़ा हुआ है. तो हिस्ट्री तो हो गया है, स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री.